Hi everyone, I'm Pooja Parajudi from Community Connect Hub. Today we are here on the occasion of International Mother Tongue Day. Before we start today's program, I would like to acknowledge the traditional custodian of this land where we are meeting today and the Gadigal people of the Ora Nation. I pay my respect to elder past, present and emerging. So today's program is all about talking in our own mother tongue, and we have invited different people from different background where they will be saying few words in their own mother tongue. And we do have Pramod Dulal from Nepal, where he will be saying few words. Hi everyone, I'm Pramod Dulal. I'm from Nepal and I'm living here in Australia for 3.5 years. And I would like to thank Community Connect Hub and Ms. Pooja for inviting me today in this program. You're welcome, Pramod. So today we have few questions for you where you will be sharing it in your own mother tongue, where you have to mention few of the topic that I will tell you. One of them will be, what's your motivation to come to Australia? Just explain it in brief for us. And another thing is the way, like, the first impression of Australia when you came here, you landed, like first expression of like airport or anywhere you went on your first day. And then second one is like the earlier stays and earlier experiences that you faced, like when you came to Australia. Okay. Now, thank you, Pooja. Now, everyone, I'm going to share my whatever I experienced here in Australia in my mother tongue. यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार। म मेरो आफ्नो अनुभवहरूलाई यहाँ केही राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम मलाई अस्ट्रेलिया आउनलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट भएँ भन्दाखेरि जब मेरो कक्षा 12 सकियो त्यसपछि के गर्ने सोच लिएर म अगाडि बढ्ने, कसरी अगाडि जाने भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा कुन देश जाने भनेर सोचे। जब त्यहाँ नेपालीहरूसँग बातचित गरेर म फर्केँ रुममा पुगिसकेपछि अब साथी काममा गइसकेको थियो। यहाँको लाइफ मैले पहिलो दिनबाट बुझेँ कि यहाँ काममा जानै पर्ने रहेछ भन्ने। साथी काममा गएको थियो, म त आएँ। अब नेपालमा यहाँको जस्तो इन्डक्सन ग्यासहरू केही पनि युज गरेको थिइनँ र मैले खाना बनाउन पनि सकिनँ त्यो दिन। नेपालबाट जुन मैले पार्लेजी बिस्कुट लिएर आएको थिएँ त्यही पार्लेजी बिस्कुट खाएर मैले त्यो दिन दिउँसभरि बसेँ, किनकि मलाई कसरी ब्याङ्क कार्डहरू के युज गर्ने पनि थाहा थिएन। जुन ल्याएको मेरो उहाँ नेपालबाट ल्याएको पैसा थियो त्यो पनि कसरी युज गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन। मैले एटिएममा लिएर आएको थिएँ, नगद ल्याएको थिइनँ। क्यासमा पैसा नल्याइसकेपछि र ब्याङ्कमा पनि थिएन र साथीको पनि फुर्सद थिएन। र बेलुका साथी आउने बित्तिकै मैले खानाहरू के बनाउने, कसरी बनाउने भनेर त्यो सबै कुरा सिकेँ। त्यसपछि त्यही नै भयो र भोलिपल्ट भयो नेपाली कम्युनिटीहरू रहेछ, उनीहरूले क्रिकेट गेमहरू गराउने रहेछ। त्यसमा गएँ, 2-4 मान्छेहरूसँग घुलमिल भएँ। उनीहरूले पनि मलाई त्यहाँनिर काम खोज्ने, यसरी खोज्न सकिन्छ, यहाँनिर यसरी बस्ने हो, यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा हामी यसरी घुलमिल हुन सकिन्छ भनेर उनीहरूले जुन मलाई आइडियाहरू दिए त्यो आइडियाले म अहिलेसम्म पनि यहाँनिर मैले अरूहरूलाई पनि त्यही पनि आइडिया दिइरहेको छु। Those who are planning to come here in Australia and those who are already here in Australia and struggling, you don't need to be panicked, you don't need to be scared and afraid of the things. Everyone who are here in Australia, they face the same stage. So you have to be patient, you have to get courage and motivation just to keep away. Thank you so much, Pramod, for sharing your story of your early days and the struggle that you went through. It's going to be a motivation for the people who are coming in or the people who are struggling and going through difficult time. I hope people are going to watch it and learn few things and take it positively. Thank you so much. We have our second guest for today. Her name is Radhika and she's from India. She will also be telling her story in her own mother tongue, which is Hindi. Thanks, Pooja. And hi, everyone. My name is Radhika Bakshi, and I am from India, Jammu and Kashmir. I hope you have heard about Kashmir a lot. So today I will be telling my whole story and my experience in Australia from last 4.5 years since I came and how is it going so far. So I would like to start now in my own mother tongue, which is Hindi. सो सबसे पहले जब मैंने ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड करा तो मेरे मम्मी पुलिस ऑफिसर हैं इंडिया में, तो उन्होंने उनके सारे दोस्त के बच्चे जो थे वो सब अब्रॉड पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी करूं
इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दें और मैं अपनी सारी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। तो यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और मैं सबसे पहले यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी। मेरी बस एक दोस्त थी, हम लोग कभी एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं मिले थे, लेकिन मैं उसको उसके साथ आईलेट्स करती थी। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी कंट्री है तो मुझे यहाँ पर आना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट से निकली, इंडिया से आ रही थी, तो सबकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। मेरे घर वाले बहुत रो रहे थे क्योंकि इतनी दूर आ रही थी मैं, और मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी कि आगे सब कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं एक बारी जहाज में बैठ गई तो मैंने डिसाइड कर लिया अब तो अभी तो लाइफ बनाकर ही निकलेंगे ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं आई सबसे पहले यहाँ पर, मैं बहुत ज्यादा फ्लाइट में भी नर्वस रही, सारा टाइम मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वहां जाके सब कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि दूर के लोग तो सब अच्छे ही लगते हैं बट जब पास रहते हैं तो पता लगता है। तो जब मैं यहाँ पर आई, मेरी दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ रही थी। वो लेट हो गई तो मुझे जैसे ही वो एयरपोर्ट पे नहीं दिखी तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई उस टाइम पे कि अब मैं क्या करूंगी। तो मैंने उसको फोन करा, उसका फोन नहीं लग रहा था, मैंने किसी से फोन मांग के फोन करा। तो उसके बाद उसका बैक कॉल आया उसी के नंबर पे, उसने मुझे बोला कि मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ तेरे पास। फिर वो मुझे लेने आई, वो मुझे लेकर सबसे पहले मैकडोनल्ड्स लेकर गई खाने के लिए। तो जैसे ही मैंने सबसे पहले इतनी सारी बिल्डिंग्स देखी, सारा कुछ पहली बार देखा, तो मैं बहुत ज्यादा खुश भी थी उस टाइम पे। कुछ तो ज्यादा खुश थी शायद, इसीलिए उस टाइम पे तो इतना सबको कुछ मिस नहीं करा। लेकिन हर दिन जैसे जैसे निकलता गया तब और घर की याद आने लग गई। जैसे ही मैं मैकडोनल्ड्स गई सबसे पहले मैंने वहां पे आइस लाटे पी। मैंने जैसी आइस लाटे ली, मेरे को बाद में पता लगा कि वो तो कड़वी होती है, क्योंकि इंडिया में तो चाय पीने की आदत थी। यहाँ पे आके आइस लाटे मैंने उसमें और शुगर सिरप डलवाया, वो और कड़वी हो गई। फिर मुझे वो सारी फेंकनी पड़ी। तो वो मुझे अपने अपने घर पर लेकर गई। उस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मुझे टेस्ट वगैरह करवाने पड़ रहे थे उस टाइम पे, उसके बिना वो मुझे घर पे एंटर नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने थोड़ा टाइम अपना क्वारंटीन पे निकाला। उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद मुझे अपने घर पे लेकर गई। मैं घर गई तो मेरे पास उस टाइम पे कुछ खाने के लिए नहीं होता था, क्योंकि वो भी काम पे चली जाती थी और घर पे मुझे इतना पता नहीं था कि वो गैस वगैरह कैसे यूज करते हैं उस टाइम पे। तो मैंने बहुत सारा ट्राई करा स्टार्टिंग में, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मेरे को मेरी दोस्त ने बोला कि हम यहाँ पर उबर कर सकते हैं, तो तू उबर ईट से ऑर्डर कर ले। पर मुझे ऑर्डर तक नहीं इतने ठीक से करना आ रहा था, तो उसने मुझे सिखाया, मैंने वो सब सीखा। उसके बाद मेरे को ट्रेवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने कभी ट्रेन में पहले ट्रेवल नहीं करा था। तो यहाँ पर आकर पता लगा कि कुछ ओपल कार्ड भी होता है, ओपल कार्ड से ट्रेवल करते हैं। और बसेस का सेम नंबर रहता था, 505 इस साइड पे भी आती थी, 505 दूसरी साइड पे भी आती थी। अब ये नहीं समझ आती थी कि कौन से वाले स्टॉप पे जाके रुकना है। तो मैंने वो सब सीखा। फिर मुझे पता लगा कि मुझे कैसे ट्रेवल करना है, रोज कैसे कॉलेज जाना है। और कॉलेज भी यहाँ पर आकर पता लगा कि सारा कुछ कंप्यूटर पे होता है। और इंडिया में तो मम्मी ने कर्सिव हैंड राइटिंग सिखा सिखा के मार मार के सिखाई थी, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि सब तो कंप्यूटर पे है, तो वो कहीं काम तो आई नहीं। तो फिर मेरे को पहले तो अपने लिए मैकबुक लेनी पड़ी। मेरे को वो नहीं पता था कि वो कैसे खरीदते हैं, कहाँ जाके। तो वो सारा सर्च करा, मैंने रिसर्च करी उसके ऊपर, फिर जाकर जेबी हाईफाई से मैंने अपनी पहली मैकबुक ली। और मैं उस टाइम पे बहुत खुश थी, क्योंकि वो मेरा पहला मतलब अचीवमेंट कह लो आप मेरे लिए थी वो। फिर मैंने थोड़ा टाइम उस घर में निकाला और मैं काम पे जा रही थी। एक दिन तो मेरा वॉलेट गुम हो गया मुझसे, तो मुझे पता नहीं लगा कि वो कहाँ पर गए पैसे। तो मेरे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लग गए थे मेरी दोस्त के साथ। तो उसने मुझसे कहा कि तू घर से मूव हो जा और अपने लिए घर ढूंढ ले। पर मैं तो किसी को जानती नहीं थी यहाँ पर, तो मैं क्या करती। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड करा कि मैं और रिसर्च करती हूँ। मैंने सारा गूगल करा, तो मुझे पता लगा कि मार्केट प्लेस से भी घर मिलते हैं। तो एक दीदी थी, वो भी फिजी इंडियन थी। मैं कोरोना टेस्ट करवाने के लिए गई थी, वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं अपने सारे दुखड़े अपनी मम्मी को सुना रही थी फोन पे, और वो मेरे पीछे खड़े होके सब समझ रही थी। मुझे नहीं पता था कि फिजी इंडियंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आता है। तो उन्होंने सब बात सुन ली, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं जताया कि उन्होंने कुछ समझा है।
उन्होंने मुझे बस अपना नंबर दे दिया और कहा कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होएगी लाइफ में तो मेरे को बिना झिझक के कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तो मेरे जब वो पैसे चोरी हो गए, मेरा सारा कुछ हो गया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको फोन करूं, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी। वो मेरे एक फोन पे ही मेरे पास आ गई। वो डून साइड ही रहते थे, तो वहीं आ गए वो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तू हमारे घर चल सकती है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर नहीं जाना चाहती, आप मेरे लिए घर ढूंढ दो कोई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मार्केट प्लेस पे कैसे घर ढूंढते हैं। मैंने घर ढूंढा और मेरे को उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा और मैं उन वहां से मूव हो गई और दूसरी जगह चली गई। तो मुझे उस टाइम पे शुरू में काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे को लैंग्वेज बैरियर था, मुझे समझ नहीं आता था इतना अच्छे से सबका एक्सेंट। तो मैंने सबसे पहला काम अपना मैकडॉनल्ड्स में स्टार्ट करा। मैं जैसे पहली बारी मैकडॉनल्ड्स गई तो उन्होंने मुझसे पहले तो सारा नॉर्मल काम करवाया। तो जैसे ही एक दिन मैं ओटी में जाने से बहुत डरती थी, मतलब ऑर्डर टेकर में जाने से बहुत डरती थी कि ऑर्डर कैसे लेते होंगे ना। तो मैंने एक बार ही सोचा कि नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश करी, पर उन्होंने जैसे ही कहा वो लार्ज बिग मैक मील, मुझे तो समझ ही नहीं आया वो उन्होंने क्या बोल दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने एकदम से बहुत ज्यादा नर्वस होके मैं वहीं पर रुक गई। मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट विंडो पे आ जाओ, मैं वहां पे तुम्हारा ऑर्डर लेती हूँ। तो मुझे नहीं पता था तब कुछ टाइमर चलते हैं उनके या कैसे ना। वहां से मैनेजर आई, उसने मुझे सीधे बोला तुम्हें किसी ने कहा है ऑर्डर लेने को, चलो बाहर यहाँ से। तो मैं समझ तो आती ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इतना मतलब सोच लिया कि यहाँ तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मुझे वहां पर उस मैकडॉनल्ड्स में मेरे से नहीं हो पाया, मैंने दूसरी जगह पे ट्राई करा, फ्रेश स्टार्ट करा, तो मेरे से हो गया। अब आज उसी मैकडॉनल्ड्स पे मैं मैनेजर बन गई। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि शुरू में सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में तुम लोगों को एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, हर गलती के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वही है कि लाइफ बहुत मतलब हार्ड नहीं है। हर चीजों में तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम मतलब डरोगे नहीं, अपने अपने आप पे विश्वास रखोगे, तो तुम लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाओगे। और मैं यही चीज चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूं जो मैं यहाँ पे करने के लिए आई हूँ। तो इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करी, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करी और आज सब भगवान की वजह से सब अच्छा ही है लाइफ में। एंड आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज टू द न्यू कमर्स, whoever is coming to Australia or they are planning to study in Australia. Australia is such a best country and you will literally gain real life experiences here and you will meet very new friends. You will meet two new friends as well. You will make new friends here. You will meet so many experienced people and you will literally learn the practical knowledge of life and you will definitely be a successful person if you will trust yourself and hope for the best. Thank you. Thank you so much, Radhika, for like sharing such a. हो पाया, मैंने दूसरी जगह पे ट्राई करा, फ्रेश स्टार्ट करा, तो मेरे से हो गया। अब आज उसी मैकडॉनल्ड्स पे मैं मैनेजर बन गई। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि शुरू में सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में तुम लोगों को एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, हर गलती के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वही है कि लाइफ बहुत मतलब हार्ड नहीं है। हर चीजों में तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम मतलब डरोगे नहीं, अपने अपने आप पे विश्वास रखोगे, तो तुम लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाओगे। और मैं यही चीज चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूं जो मैं यहाँ पे करने के लिए आई हूँ। तो इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करी, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करी और आज सब भगवान की वजह से सब अच्छा ही है लाइफ में। एंड आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज टू द न्यू कमर्स, whoever is coming to Australia or they are planning to study in Australia. Australia is such a best country and you will literally gain real life experiences here and you will meet very new friends. You will meet two new friends as well. You will make new friends here. You will meet so many experienced people and you will literally learn the practical knowledge of life and you will definitely be a successful person if you will trust yourself and hope for the best. Thank you.
Thank you so much, Radhika, for sharing such a beautiful and inspiring story today with our audience. I hope they will get a positive feedback from whatever she said. Such an inspiring story from her. I hope for newcomers, do your research just like she said, and I hope you will get all the positive responses. Guest, her name is Teresa. She's from Hong Kong, and she will be sharing her experience in her own mother tongue and English. There you go. Thank you for inviting me. So I will speak in Cantonese. Hi，我咧係叫做林鳳儀，我係喺香港嚟嘅。咁樣咧就49年前咧，我一個人就嚟墨爾本澳洲讀書。嗰陣時咧就因為我哋又冇親戚又冇朋友喺度，每一樣嘢咧都係靠自己。咁嚟咗2個禮拜後咧，我已經有困難揾地方住，但係因為都好幸運就識咗幾個喺香港嚟讀書，即係大過我幾年嘅朋友，佢哋就幫我揾地方住。我喺墨爾本大學讀咗4年，就係讀電腦科，讀完咗之後，亦都好幸運可以揾到一份工喺墨爾本醫院度做咗1年。之後咧，我就去咗雪梨住。喺雪梨嗰度咧，我就認識咗我最後係我個先生，我哋咧就可以開咗一個電腦嘅生意。咁喺嗰個時候咧，電腦生意咧都係好容易做啦。我哋都做咗20年後咧都好成功。我咧就都可以睇住我啲細路仔啦，喺咁耐嘅時間，我喺澳洲就識咗好多朋友，係不同嘅國家嘅朋友。咁我哋大家咧都會慶祝我哋不同嘅festival 啦。到而家喺呢度15年咧，我最近嘅15年我都係喺做殘廢人嘅服務啦，咁樣咧我都係做 NDIS 嘅服務，咁對我嚟講咧都有好有意義，而可以幫到別人。對我嚟講，澳洲係俾咗一個好大嘅機會我都好多謝澳洲所有嘅人同埋政府。I would like to speak in English now. So I came to Australia 49 years ago, and I call Australia home. I'm very grateful for all the opportunities that Australia has given me in terms of my education, my business opportunities, my career opportunities, and most of all, that I'm able to meet friends and colleagues from a lot of nationalities, that we support each other, we celebrate our festivals, and we are always happy to include everybody. So it's a really great place to live. Thank you. Thank you so much, Teresa, for sharing your such a beautiful stories of the experience you have shared with our audience for 49 years. So it's very nice to hear this story that is so long and inspiring. Thank you so much for coming in today. Thank you for the opportunity. Thank you so much. I would like to thank everyone who came here today, participated in our program, and shared beautiful and inspirational stories among us to inspire people who are coming and applying for Australia and who are already here struggling. I hope you guys have some positive feedbacks and positive outcomes that you're going to apply in your life from their stories. I would personally like to thank Pramod, Radhika, and Teresa who shared their stories among us to inspire us. Thank you.